अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ZABFM डिजिटल। डॉक टॉक के इस एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर उर्सा इजाज। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट ZABIST यूनिवर्सिटी। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद हैं ये मेरे टीचर भी हैं, मेरे बॉस भी हैं ZABIST में, और ना सिर्फ इनकी एक डायनामिक पर्सनैलिटी है बल्कि इनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है ZABIST में भी और इसके अलावा भी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी फील कर रही हूँ कि क्योंकि आज का एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है। सर के बारे में मैं पहले एक शेर कहना चाहूँगी। यूँ तो सब कुछ मिला मुझे उसमें, यूँ तो सब कुछ मिला मुझे उसमें, बस गुरूर और अना ना मिली। इनके बारे में सबसे अच्छी बात ये जो मुझे लगती है वो ये कि ये अपने डिसीशंस पे फर्म रहते हैं, अपने सजेशन अपने ओपिनियन को सबके सामने रखते हैं और अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं अगर इनकी तारीफ़ करना शुरू करूं तो हमारा पूरा एपिसोड इसमें गुजर सकता है। तो विदाउट एनी डिले लेट मी इंट्रोड्यूस प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ अली। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam. हाउ वाज योर डे? It's wonderful and like always and happy to be here. Okay, same here sir. I am very happy that you are the guest of today episode. So सर अपने बारे में कुछ बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और कैसे आपने अपनी एजुकेशन को आगे परस्यू किया? Well, मेरा सारी एजुकेशन प्राइमरीली कराची में ही हुई है. I did my bachelor's from University of Karachi in physiology. After that, I did my master's in biotechnology, which was very new at that time. Just after doing my master's, I did 2 years of research work at HEJ Institute as a junior research fellow. Then I got a scholarship from HEC, and then I moved for my PhD studies to Netherlands. Great. 4 साल वहाँ रहे, PhD किया. Then I got a opportunity to work as a postdoc fellow in European Union FP7 program. And for that, I went to Germany for my first postdoc. Soon after I finished my first postdoc, I got invited again by Leiden University in Netherlands for my second postdoc. वहाँ पे I was doing some research on marine sponges. Then, fortunately, I got another postdoc in University of Florida, USA. And actually, I was visiting Pakistan on a family visit, and then I got a chance to give an interview at SZABIST. Okay. So it was very accidental, but I believe it was a very appropriate decision at that time. So I just leave my postdoc in the middle, which was it was a 2 years postdoc. I did only 1 year, and then since then I'm here at ZABIST. Your educational career is quite incredible, I must say. Thank you. So sir, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे MBBS करना है, have to become a MBBS doctor? या स्टार्टिंग से आप बहुत क्लियर थे कि मुझे अपना बैचलर्स बायोटेक्नोलॉजी में करना है? To be very honest, like every student in Karachi who is doing pre-medical from intermediate में जो भी pre-medical कर रहे हैं, I was very much into becoming a doctor. Okay. Doing MBBS was my dream, but like not all, but like many of the students, that dream didn't come true. Obviously, reasons तो बड़े obvious है, बताने में embarrassment है तो मैं नहीं बता रहा. But let's just talk about it. Like many of the students, मेरी percentage उतनी नहीं थी. I got admission in MBBS program. So I was looking for various alternates, and at that time I came across with this discipline known as physiology. And मैंने अपने दिल को ये तसल्ली दी कि physiology is also a course जो MBBS में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है और बड़ा इंटीग्रल कोर्स है MBBS का. So even if I'm not doing MBBS, I'm doing something closer to MBBS. So इस वजह से I started my BSc from Karachi University in physiology. Okay. Yes. So doing MBBS was always a program. I was aimed to do MBBS, but I didn't end up like that.
But whatever I did in my life, I believe I did well. So how you entered in the biotechnology department? Oh yeah, that's also a very interesting story. I was doing physiology, BSc in physiology, and at that time I came across a department which was not newly established but not very old as compared to other contemporary departments in Karachi University like microbiology, biochemistry, and others. So that department was the Department of Biotechnology. At that time, they were only offered master's program, and the master's program was they actually started recently at that time. तो उनके पास ज़्यादातर मास्टर्स के स्टूडेंट थे और वो स्टूडेंट थे जो ए कॉलेजेस से बीएससी करके आते थे. तो I was just talking to my teachers in microbiology department. और मैं माइक्रोबायोलॉजी मेरा सब्सिडियरी सब्जेक्ट था और मैं खासा मशहूर था फॉर सम रीजंस, फॉर सम गुड रीजंस. डॉक्टर सुभान मेरे टीचर थे एंड ही वाज वेरी मच व्हाट यू कैन से मुझे पसंद करते थे सब फॉर ऑब्वियसली मैं एकेडमिकली थोड़ा अच्छा था. तो ही एक्चुअली टोल्ड मी इफ यू रियली लाइक माइक्रोबायोलॉजी तो आप फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लें. और मैं बहुत इंटरेस्टेड था कि मैं फिजियोलॉजी से माइक्रोबायोलॉजी में ट्रांसफ़र करवा लूँ. अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब ट्रांसफ़र का टाइम आया 1 साल के बाद तो मेरे एक परफॉर्मा मुझसे मिस हो गया. कराची यूनिवर्सिटी में आप जानती हैं हर सेमेस्टर के बाद आपको एक परफॉर्मा इशू होता है जिसमें आपके मार्क्स होते हैं और ये बताया जाता है कि आपके सारे कोर्सेस क्लियर हैं. तो मुझसे वो मिस हो गया और मिस हो गया तो ज़ाहिर है मैं एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता था ट्रांसफ़र की. तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, डॉक्टर सुभाल भी बहुत डिसअपॉइंटेड थे. बट जस्ट मेरा ख्याल है शायद उन्होंने मुझे चेयर अप करने के लिए कुछ इस तरह का सजेस्ट किया चलिए कोई बात नहीं अगर नहीं हो सका. बट जब आपके 2 साल हो जाए तो देयर इज़ अ डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी जो माइक्रोबायोलॉजी के टीचर्स ने ही इस्टेब्लिश किया था. और हमारी उस वक्त जो फाउंडिंग चेयरपर्सन थी डॉक्टर तशमीम रज़ाकी, शी वाज एक्चुअली अ वेरी रिनोन्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट इन द कंट्री. तो उन्होंने वो इस्टेब्लिश किया था. तो उन्होंने फिर डॉक्टर सुभान वाज एक्चुअली द पर्सन हु टोल्ड मी अबाउट दिस डिपार्टमेंट. उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है और मेरा ख्याल है शायद बहुत ही रेयर फील्ड थी लेकिन बहुत न्यू थी और बड़ी रेलिवेंट थी. तो खैर देन आई स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट. फिर मैं वहाँ गया, पूछा, फैकल्टी से मिला. तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं इट वाज अ गट फीलिंग क्योंकि मैं उस वक्त इतना तो मैच्योर नहीं था एकेडमिकली अपने लिए कोई बहुत अच्छा फैसला करूँ. बट समहाउ इट कम फ्रॉम इनसाइड जी आप I should be here. This is the place. वहाँ पे उनका ये था क्योंकि वो लोग बैचलर्स प्रोग्राम रन नहीं करते थे तो वो सिर्फ मास्टर्स में एडमिशन लेते थे. तो जब मेरे 2 साल पूरे हुए तो देन आई डिसाइडेड मुझे वहाँ ट्रांसफ़र करवा लेना चाहिए. एंड देन आई अप्लाई फॉर द एडमिशन. वहाँ पे एडमिशन भी बड़ा अनकन्वेंशनल था एट दैट टाइम. जो कराची यूनिवर्सिटी में टेस्ट और इंटरव्यू नहीं होते थे एट दैट टाइम. सिर्फ आप एप्लीकेशन सबमिट करते थे और आपकी इंटरमीडिएट के मार्क्स के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट असाइन हो जाता था. बट बायोटेक्नोलॉजी वाज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वाज द ओनली डिपार्टमेंट जो उस टाइम पे टेस्ट भी लेता था और इंटरव्यू भी लेता था. So fortunately I got cleared in the test, I got cleared in the interview and I got admissions over there. उसके बाद the life has been dramatically changed. और शायद वहीं से मैंने सीखा there is no holiday. तो आप अभी आराम या तसल्ली या रिलैक्स नहीं हो सकते. आप being a true professional आपको हमेशा काम करना है और बहुत काम करना है और मुसलसल काम करना है. So that is the training that I got from that department. So I believe I answered your question. I have so many things to talk about. I feel nostalgic because your story is quite similar to me. Yes. मेरा भी फिजियोलॉजी में एडमिशन हुआ था. फिर मैंने ट्रांसफर किया था माइक्रोबायोलॉजी में. अच्छा है. और डॉक्टर सुभान मेरे भी टीचर हैं. हाँ. तो मैं ही मेमोरीज में खो गई. But anyhow, it was a good decision. Yes. So and we are blessed to have you here at ZABFM. Oh yeah. Thank you. So would you please tell us about the history of the ZABFM, which department you started and now what's the status of the faculty? Again, a long story to tell, but I'm saying it with all my pride
Me actually, I got here in 2013. Okay. So as I told you जैसा मैंने बताया I was doing a postdoc in USA मैं पाकिस्तान आया हुआ था छुट्टियों में तो मेरी कुलीग थी HJ से तो वो यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी and she simply asked me चलो तुम्हें इंटरव्यू तो दे दो let's see क्या होता है because वो प्लान कर रही थी अमेरिका मूव होने के लिए तो उनको ये लगता था कि यहाँ जगह अच्छी है it's a good place to work तो मैं आ गया इंटरव्यू के लिए तो उस वक्त जो मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझसे सबसे फनी क्वेश्चन ये पूछा गया इनफैक्ट फनी नहीं था it was not a question but it's a amend and we actually failed to understand why you wanted to work at ZABFM. Because I told them कि मैं तो वहाँ पे हूँ और मेरा पोस्टडॉक चल रहा है और मैंने तो तकरीबन सेटलमेंट है वहीं पे तो बट एनीवे आई टेल देम नहीं मुझे पाकिस्तान आना है और जो इतना गलत बात भी नहीं थी मुझे आना तो था being an HSC scholar I have to come back and serve the country so मैंने उन्हें कहा नहीं I am bound to come and if I got a position over here so it will be a very easy decision for me to leave my postdoc at USA and came back to Pakistan. Anyways, the interview went well and they appointed me as an assistant professor in 2013. By that time, there was only one program which is Biosciences, which ZABIST is the pioneer in starting this program in Sindh. In Pakistan, only OMSAT was offering this program at that time, but we were the first university and the program was recently started. There was only, if I'm not wrong, 57 students throughout the program. So it's a new program having everything new. In fact, very few of the things were actually established at that time, and we were in the process of establishing and building everything. So I got appointed, and then I feel somehow again my gut says that this is the place where I can actually do and serve the country and do things which I wanted to do as what you can say as a change bringer. Maker, yeah. Yes. So I said okay. So I got appointed. I spent 3 years quietly strengthening the program, doing some consolidation. We established labs, we buy equipment, we did everything to make the BS Biosciences program a best possible alternate for the intermediate students who are not getting admissions in MBBS and pharmacy and every other available field. And we are actually very successful in that. But as I told you, I learned somehow or I got trained in doing things after every 2-3 years. As a leader. So this is probably I learned from my mentors. So I think why not starting a BS Biotechnology program? Because I have done my master's in biotechnology. I know this is the field which has tremendous potential, and I was looking to build a team for biotechnology as well, and fortunately I got a support one of my close friend. You know him very well, Dr. Hamad. I asked him if he would be interested because he was about to finish his PhD as well. So after finishing his PhD, he got also appointed here at ZABIST. तो फिर मैं थे हमाद थे फिर कुछ लोग हमारे साथ पुराने भी थे जो मेरे से पहले थे तो I built up a team जो बहुत strong थी not only in their academics in their research profile and also they were very much associated and inclusive in whatever they are doing. तो बहुत हमारा प्रोफेशनल अटैचमेंट तो था और है लेकिन अभी भी जो मुझे सबसे अच्छी बात मेरी टीम की लगती है वो उनका इमोशनल अटैचमेंट भी है. They wanted to do things from their heart. So we started biotechnology and again we did everything to make this program a top-notch program among the contemporary universities. और उसके बाद फिर MS Biosciences शुरू किया because we wanted to have more research in the department. उसके बाद we are the only university in Sindh, if I'm not wrong, who is offering
the PhD Biosciences. Okay. And we are the only university who has produced almost I'm saying because two students are about to get their Yeah. PhDs, so I'm saying almost 5 students have done their PhD. And this is the story of Biosciences. Then we started MS Biotechnology program. Again, after spending 5-6 years and starting Biosciences and Biotechnology, then I feel that there is something which is missing in the horizon of Life Sciences. So I wanted to change the faculty of Biosciences into the faculty of Life Sciences. Okay. And I talked to the management, and management is always very supportive to me. मुझे बहुत उन्होंने support किया, and they said कि थोड़ा सा आप portfolio expand करें, try to think. तो जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है उसमें हमारी मैडम चांसलर है, मैडम प्रेसिडेंट है, सर वाइस प्रेसिडेंट जो भी हमारे साथ यहाँ काम कर रहे हैं, तो दे हैव एक्चुअली गिवन मी फुल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू बी मेंशन. गाइडेंस उनकी बहुत इम्पोर्टेंट रही इस पर्टिकुलर वेंचर में जो हमने शुरू किया पब्लिक हेल्थ. And again, we were the first private sector university which started this program after Al Khan. Actually, Al Khan is not doing public health. They were doing epidemiology and biostatistics, but we were the first who actually started MPH program. But our university has also started before us. So, but we started the Master of Science in Public Health. They were doing MPH. So after starting public health, we were actually getting a very good response because we are actually filling the gap that is actually existing for a very long time. So that is a huge success. The Master of Science still is a huge success. Then to add more to the public health domain, we have started BS in Public Health. Now for I think 2 years back we started BS in Nutrition. And coming back to the Bioscience and Biotechnology, we thought that again there is a vacuum that existed, and Karachi being an industrial city and having so many industry located in Karachi, which is a food industry. So we thought that it's a vacuum that needs to be filled by a program that we call as BS in Food Science and Technology. So that is the story so far. But again, as I said, now it's not only me, my team is also always thinking, having new things in the department. So now we have started, we are going to start, in fact, from fall 2025, is Computational Biology, BS in Computational Biology. And also we are planning to start PhD in Biotechnology as well. So now the structure wise, we have a faculty of Life Sciences who is having 3 departments. BS having Department of Bioscience. उसके अंदर 3 programs हैं, BS, MS, PhD Bioscience. फिर हमारे पास Department of Biotechnology है, उसमें हमारे पास BS, MS और PhD Biotechnology है. फिर हमारे पास Department of Public Health है जिसमें BS Public Health, MS Public Health and BS in Nutrition and Dietetics. That is the program. So now this is the entire portfolio that we are having. So BS Food Science and Technology and BS Computational Biology, we are planning to offer them. In fact, we are offering them under the umbrella of Department of Biosciences. So probably in future we will have Department of Food Science. And I'm not claiming anything, but this is something in my head. So probably it will happen. Yeah, inshallah. So, sir, head of the department and dean faculty of life sciences, कैसा experience है आपका? Oh, बेहतरीन, बहुत 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 अच्छा. हेड बनना तो खैर एम नहीं था, तो लेकिन जब मैं अपॉइंट हुआ तो उस वक्त जाहिर है आई वॉज द वन जो मैनेजमेंट को लगा जिस पे भरोसा किया जा सकता है, तो मुझे उम्मीद है उनका भरोसा मैंने रखा. हेड ऑब्वियसली आपका काम एज अ हेड जो मैं समझता हूँ या जो मैंने अपने टीचर्स से सीखा वो ये कि आप नंबर 1 यू नीड टू गिव अ विजन.
और आपका अपना विजन होना भी चाहिए इफ़ यू आर लीडिंग एनीथिंग इन योर लाइफ तो जाहिर है एक विजन इस्टेब्लिश करना और फिर उस विजन को अचीव करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये ऐसी टीम बनाना जो आपके साथ वो विजन को शेयर करे और आप उस विजन की अचीवमेंट को आसान करें उसके लिए एज अ लीडर आपको अपनी टीम के लिए आसानियाँ करनी होती हैं यू रियली डोंट नीड टू बी अ बॉस टाइप ऑफ अ बॉस तो मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी टीम के लिए आसानियाँ करूँ और कोशिश करी कि ऐसे लोगों को टीम में लाऊं जो कि ना सिर्फ प्रोफेशनली साउंड हो जिनका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो और जो कि इस विजन की अचीव करने को अपना विजन समझे और आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नथिंग स्पेशल अबाउट मी बट मैं शायद बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि सिंस 2013 और अब 2025 है जितने भी लोग डिपार्टमेंट में आए वो सब बहुत हाईली प्रोफेशनल थे बेहतरीन क्वालिफिकेशंस के साथ थे और उन्होंने हमेशा डिपार्टमेंट में होने वाली चीज़ों को न सिर्फ सपोर्ट किया उसमें हेल्प किया उसको इस्टेब्लिश किया इन अ ट्रू स्पिरिट और इसी वजह से जितना कुछ मैंने अभी आपके सामने बताया पिछले 10-12 सालों में वो सब करना मुमकिन हो सका इट इज़ नॉट मी इट्स नॉट इट्स नेवर अबाउट वन पर्सन इट्स ऑलवेज अबाउट अ टीम तो आप मेरी टीम माशाल्लाह इतनी अच्छी है तो मेरे लिए कुछ भी सोचना और उस सोचे हुए को मुमकिन बनाना मुश्किल नहीं होता तो yes it's a wonderful experience for to head a department and then becoming a dean ज़ाहिर है जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो गई हैं काम ज़्यादा हो गया है लेकिन हैविंग सेड दैट दोबारा मैं ये बात एम्फसाइज करूँगा कि जितने भी मैंने नई चीज़ें करने की कोशिश करी मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर इट इज़ एब्सोल्युटली डूइंग अ थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं हमेशा कहता हूँ डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू तो इन फैक्ट आई एम डूइंग बोथ आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम डूइंग व्हाट आई लव तो एक्चुअली में it's a wonderful experience and a lovely journey so far. इस पे न्यूटन का थर्ड लॉ मुझे याद आ रहा है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अ परफेक्ट रिएक्शन Yes. ऑब्वियसली इट्स लाइक हैविंग अ गुड बॉस इज अ ब्लेसिंग और जब आपकी लीडरशिप अच्छी होती है तो आपकी टीम भी अच्छी होती है बिकॉज बैड बॉस इफ द मोस्ट हॉरिबल वन इन द वर्ल्ड सो सर अगर किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है इन बीएस बायोसाइंसेस या जो भी प्रोग्राम्स आपने मेंशन किए हैं उसका क्या क्राइटेरिया होगा डिटेल क्राइटेरिया तो अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट ZABIST की वेबसाइट है और वहाँ पे एडमिशन्स की भी ZABIST एडमिशन्स की वेबसाइट सेपरेट है बट इट्स इजली एक्सेसिबल एनीबडी हैविंग एन इंटरनेट वो एक्सेस करके वहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया देख ले बुनियादी तौर पे क्राइटेरिया ऑब्वियसली आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ हो विद सर्टेन परसेंटेज वेदर इट्स प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग इट डजंट एक्चुअली मैटर और अगर आप एवरेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो यू मस्ट हैव डन A levels विद सर्टेन पेपर्स टू बी पास्ड तो वो डिटेल जो है वो मेरा ख्याल है इस वक्त बताना अप्रोप्रिएट नहीं है बट इट्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट तो इट कैन इजीली बी एक्सेस्ड And you announce the admission twice in a year, right? Yes, we do announce admissions in fall, which is a regular cycle of admissions, but we also announce admissions in spring as well, in all our bachelor's programs. Okay, that is amazing. Yes. So, any take-home message for the students and the parents who are in the process of career building and thinking about in which subject we have to do bachelor's or masters? Well, सबसे पहले तो जो मैं कहना चाहूँगा वो ये if you didn't get admission in MBBS and BDS, I know it's very shattering, बड़ा मुश्किल होता है इसको digest करना, but if it happened then please accept the fact कि ये हो चुका है और having said that मैं आपको उन तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि देखिए this is not the end of the world. आपको अपने ग्राफ में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेंगी जो MBBS में दाखिला नहीं ले पाए
लेकिन they have done something else and they are very successful. So life is all about choices, and you have a choice, and the choice is very I must say the choice is very obvious. क्योंकि आपको बायोलॉजी पढ़नी है, you have decided. जब आपने अपनी मेडिकल चूज किया, ऑब्वियसली आपको ऐसा लगता है कि आपको बायोलॉजी पढ़नी चाहिए. तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए you have a very good option of being enrolled in the biosciences or biotechnology or food sciences or even public health and nutrition. तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. और ये let me be very honest and I don't want to be modest in saying जो ZABIST में जो BS Biosciences और Biotechnology या कोई भी BS प्रोग्राम जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लाइफ साइंसेस ऑफर हो रहे हैं, वो किसी भी कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में बहुत अच्छे हैं. देखिए, किसी भी प्रोग्राम के अच्छे होने के 2 या 3 बुनियादी क्राइटेरिया है. नंबर 1, आपकी फैकल्टी. तो वी हैव अ टॉप नॉच फैकल्टी एज आई ऑलरेडी सेड. हमारे ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो PhD हैं. तो दिस स्पीक्स अ लॉट, क्योंकि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो शायद आपको ये नहीं मिलेगा. दूसरा, फैसिलिटीज़. जो लेबॉर्ट्रीज़ हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश करी है वो सारी की सारी टॉप नॉच है, कटिंग एज है. तमाम तरह की रिसर्च को सपोर्ट कर सकती है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो या बायोकेमिस्ट्री हो या मॉलिक्यूलर हो, इवन computational भी, agriculture भी. Even if we do, I think we are the only university that is having a plant tissue culture lab, a functional plant tissue culture lab, a private sector university I'm talking about. So हमारे पास state of the art labs हैं, बच्चों को real time lab में काम करने का experience मिलता है. और तीसरी जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप ये देखें कि क्या आपका बच्चा जब यहाँ से पास आउट होके निकले तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है या नहीं. क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, वी आर डूइंग और रनिंग दिस प्रोग्राम फॉर द लास्ट 11-12 years now, in fact 13 years to be precise. We have established our market. Our students are already doing jobs at a very good positions. और हमने यहाँ पे जो हमारे करिकुलम है वो इस तरह से डिज़ाइन किए हुए जो एक इंडस्ट्री की नीड्स को मीट करते हैं. और अगेन आई एम टेलिंग यू, probably we were the only university who has industrial advisory board, who has institutional biosafety committee, and we have a very strong alumni that is not only serving in Pakistan, in Karachi, but also our students have successfully secured admissions in their master's program outside Pakistan. There are many students, I cannot say all of them names, but I know they are doing their studies in Germany, in Europe and USA and everywhere. तो दिस ऑल्सो टेल्स कि जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और जो प्रोग्राम्स हमने यहाँ डिज़ाइन किए हैं वो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है और रिकॉग्नाइज्ड है. तो यस, द मैसेज इज़ वेरी क्लियर एंड लाउड. आप MBBS अगर नहीं हो सका तो वी आर गिविंग यू एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू चूज़ अ करियर पाथ जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और विद इन द फील्ड आपको जो है मौका मिलेगा कि आप अपना करियर इस्टेब्लिश कर सकें. एक बात मैं और शायद मैं कहना भूल गया या मेरे जहन से निकल गया था. प्रोग्राम दैट वी आर अबाउट टू स्टार्ट इज़ द वन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. अगर वक्त इजाज़त दे तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ. यू सी, दिस इज़ व्हाट हैपनिंग. जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम आया है, so I have seen many of the pre-medical students, they are trying to get into the computer science field. Let me be very honest, computer science field बहुत अच्छी है. There is nothing wrong in it. लेकिन जो pre-medical students होते हैं शायद वो inherently उस तरह से train नहीं होते.
और इसमें उनका कसूर नहीं है। Obviously. मैं बिल्कुल साफ साफ एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथमेटिक्स नहीं से दूर पढ़ते जाते हैं, हैं, दूर हो इसीलिए जाते तो हैं। मेडिकल में हाँ, एडमिशन ये लेते भी हैं। रीज़न होता है। तो जिनको मैथ पसंद नहीं होती वो प्री मेडिकल में आ जाते हैं, दिस इज़ वन रीज़न। लेकिन कुछ लोग वाकई प्री मेडिकल अपने शौक से पढ़ना चाहते हैं, तो रीज़न क्या है कोई भी हो, मैथ आपने नहीं पढ़ी, जी। दैट्स अ सिंपल थिंग। कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो फॉर दोज हु डोंट वांट टू स्टडी मैथ और हु डोंट लाइक मैथमेटिक्स, जो बाय द वे अच्छी चीज़ नहीं है, मैथ से आपका पीछा नहीं छूट सकता, तो आप बेहतर है कि उसको अपनी लाइफ में शामिल करें। बट द पॉइंट इज अगर आपको मैथ से प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। इट्स एडवाइस दैट आई एम गिविंग टू एवरीबडी जो भी मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो बट स्टिल आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि अब क्योंकि बूम है IT का, कंप्यूटेशनल चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का, तो इस वजह से this is why we have designed this program, the program that I'm just talking about, which is BS Computational Biology. You see, biology is not always working in the lab and doing research or having things done in the laboratory. There are many things in biology that needs computation power and computational analysis of the data that we used to have in biology, like in genomics and proteomics and even in metabolomics. Clinical data. So we designed this program just to address that part or that interest of the student. I wanted to do biology, but I also do something. I also wanted to see myself doing something in computational field. So that's why this is actually a combination, a hybrid program that is having a very good integration of biology and computer science. So we do have, again, we didn't start this thing just सिर्फ इसलिए शुरू नहीं किया कि हमें ये करना है। We actually established a lab और ZABIST तो ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस का बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कंप्यूटर फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। तो having a strong Biosciences department and having a strong computer science department हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं था इस प्रोग्राम को कंसेप्चुलाइज करना और इसे शुरू करना। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको बायोलॉजी में रहते हुए IT की फील्ड में अपने आप को एंटर करना है। तो आई थिंक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी वुड बी अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर दोज। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने प्री मेडिकल की एग्जांपल दी कि उन्हें जिन्हें टेक में इंटरेस्ट है वो एडमिशन लें। इनफैक्ट प्री इंजीनियरिंग के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एडमिशन इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में नहीं हो पाता, बट उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहना है, वो भी इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम श्योर आपकी डिस्कशन से और सारी सजेशन से हमारे स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके सो व्यूअर्स, आई एम श्योर कि आज का एपिसोड आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशंस एंड रिस्पॉन्स, एंड विद दिस योर होस्ट डॉक्टर उर्सा एजाज साइनिंग ऑफ from ZABFM Digital. Allah Hafiz.